I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I can feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of life, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling. जैसे 5 से कॉमन करना कहीं एक क्लोज किया बात ये देखो नहीं हुआ ये 2-4-5 करेंगे तो कर देते इसलिए कॉमन बहुत जरूरी है तो जैसे साइड बैक साइड से करना क्योंकि सुबह सुबह ना मॉर्निंग अभी नहीं होती पर जिस तरह गवर्नमेंट से कर 5-10 बार कर ही लेनी चाहिए एक बार हाथ लेंथ लंबी करके 1 2 पैरों को मूव इट लो इट स्ट्रेट कर दिया पैरों को मूवमेंट स्ट्रेट कर कोई खाना कम खाया है और काम करते रहे ज्यादा नहीं तो शायद जल्दी आता है मेरा सब्जियों में आदमी खा ही लेता है चाहे जितना बचा है और सुनो ज्यादा खाना क्यों करते हैं तो घर वालों को चिंता होने लगती है वो लड़ाई थोड़ा सा बैक कोई तो बात है जो खा ले हाँ कोई तो बात है जो खा ही नहीं पीछे की मसल्स को खोलने के लिए थोड़ा सा बैक 1 2 3 4 9 10
Okay, same thing. Up, down. 1, 2, 1. 1, 2. Side. हमारे पास इंडियन सांस एक्सरसाइज करते हुए सांस को बढ़ने देखिए फिर एक बार इनहेल किया फिर अप किए फिर इनहेल किया सांस को जब एक साथ सांस को जब एक साथ 5 मिनट तो फायदा ये होता है कि ब्रीदिंग की एक्सरसाइज की वजह सांस तुम्हारे हिसाब से चलेगी जैसा तुम चाहते हो जैसे सांस आती है जाती है लोग तो जब एक्सरसाइज करते हैं सांस को जो है अपने हिसाब से चलाते हैं डाउन एक्सेल अप डाउन एक्सेल अप अवेयरनेस के साथ रखनी है अपने आप को ब्रीदिंग साइड से ऊपर 3 4 5 अब मान लो पहले राइट हैंड को नीचे किया तो अब लेफ्ट हैंड को नीचे करना ताकि दोनों पार्ट का मूवमेंट चलता रहे। सूर्य नमस्कार करने में फॉरवर्ड बेंड टच हुआ नहीं हुआ चलेगा, वन लेग बैक, इसको बोलते हैं संचालन। सामने की तरफ देखिए, बैक किए फिर धीरे धीरे डाउन माउंटेन पुश। यहाँ स्टांग करते हैं, हालांकि स्टांग नहीं करना, फ्लोर नहीं टच है। अब मैं तो हम लोग योगा इसलिए करते हैं ना ताकि स्वस्थ रहे। आप 2 लोग भी जो देख रहे हो उसके लिए धन्यवाद। मैं आगे कराने जा रहा हूँ क्लास, तो रेडी हो जाइए। चलो
बस शुरू करते हम लोग। एक सूर्य नमस्कार आपके साथ में करें, मैं उसके बाद में बताता हूँ दीदी के साथ। उधर से रखना ब्रीदिंग का जरूर कॉन्सेप्ट रखना था। हर बार ब्रीदिंग की सांस जो कैसे सांस लेनी कैसे सांस छोड़नी है उसका ख्याल जरूर रखें। योगा में योगा एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको एक अनुशासित सांस लेनी होती है, अवेयरनेस के साथ कि कब आप पोजीशन के साथ सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, वो देखते हैं आगे। नहीं आता वैसे मेरे फोन में कनेक्ट नहीं होता है। हाँ वही ना, अभी आपका वाला फोन है ना। लाइट स्पीड कर दे। Disconnected. वृक्षासन को ही ताड़ासन बोलते हैं। ताड़ासन का मतलब क्या है? आप किसी भी पोजीशन आप खड़े हो, चाहे वो माउंटेन पोज भी वो भी ताड़ासन है। Clear. हो गया सुनो सर। अरावली पर्वत सारे अरावली पर्वत 100 मीटर के अंदर में बहुत 12,000 पहाड़। लेकिन पता है ये एक्सरसाइज करते हुए जैसे आपने आँख बंद किया, सही कंसंट्रेशन वही है, तुरंत आप गिरने लगते हैं। वही कंसंट्रेट करना, आँख खोल के कंसंट्रेट होता है तो अच्छे से होगा। जैसे आँख बंद किया आपने, दुकान के लिए लोन मिल तो गया पर दुगनी ईएमआई को कहना पड़ा। बीच बचा वाली पोजीशन आती है, ऐसे बैठते अगर सिटिंग पोजीशन या तो पूरी सिटिंग रहती है तो हाफ सिटिंग चल रहा है प्ले चल रहा है तो कोई बात नहीं होगा, तो कुछ करते रहेगा। मैं दिहाड़ी पे पैसे कमाने क्योंकि मैं दिहाड़ी में दूध ही होता है, नहीं होता है। Two, three, 1, 2, 3। दो तरफ से हर बार अपनी सांस को बांध के चलना। तो इनहेल गंदी है, बिल्कुल ये देता हूँ पतला है। चुनाव तो होने वाले हैं शायद। नहीं उसमें आप लोग जीते रहते बहुत लोग खड़े हैं। दीपक यादव पूरे यूपी से 385 पूरे यूपी मतलब में अलग से अगर चुनाव जीत आता है पैसा। यूपी बार कांग्रेस का चुनाव छोटा चुनाव नहीं होता भाई, विधायक के बराबर का चुनाव है। और क्या क्या समझ रहे हो, कोई नॉर्मल समझ रहे हो चुनाव? जितना विधायक का फंड है उतना ही वहाँ के सदस्यों का फंड है, फंड की कमी नहीं है।
आप और उसके बाद आराम से ये स्ट्रेच करने के लिए आप से 2 3 4 5 1 2 इनहेल, बॉडी जब क्लोज होती है अंदर की तरफ तो सांस अंदर जाती है, और जब बॉडी खुलती है बाहर की तरफ तो सांस छोड़ते हैं। तो सांस का जो बंधन है बराबर मेंटेन करते हैं। 1 इनहेल, एक्सहेल, सेम भी करेंगे ऐसे इनहेल, अब करेंगे एक्सहेल, फिर इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, चाहे वो नाक से सांस ले और नाक से छोड़े, चाहे नाक से सांस ले मुंह से चलेगा। इसके बाद थोड़ा सा अपने आप को बुलंद डाउन की, हेड डाउन किया, 1, और अब गए सामने की तरफ चिन करते हैं 2, फिर आगे पीछे चिन और चेस्ट टच, और फिर आगे गए चिन टच, फिर चिन और चेस्ट टच, फिर आगे गए चिन चेस्ट, दोनों 2 4 5 मूव इसके हो गए, पेट के बल लेट जाते हैं। और मकर आसन की क्वेश्चन पे 1 2 वेरिएशन करते हैं जो कमर के लिए सबसे ज़्यादा मज़ेदार और आरामदायक रहते हैं। यही सारे मूवमेंट करते रहता है। अगर रोज भी करे ना आदमी, जो मोटा आदमी हो तो भी वो पतला हो, पर समय लगेगा 4-6 महीने 8 महीने पर। आदमी क्या चाहता है? एक्सरसाइज ताबड़तोड़ करे। ताबड़तोड़ मतलब एकदम वो सारी जिम की मशीनें उठा ले, दौड़ ले, भाग ले, इतनी तेजी से पतला हो भी जाओगे, हम नहीं कहते हो जाओगे, हो जाओगे। अगर कोई इंजरी हो गई या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, पर ये क्या है ना, ये होम्योपैथिक दवा है, ये धीरे धीरे आप काम करेगी और धीरे धीरे काम करेगी और काफी दिन तक आपको रखेगी स्वस्थ। नहीं तो जब उस तरह से लोग खटाक से मोटे और पतले होते हैं तो फिर दोबारा मोटे और पतले दोबारा फिर होते हैं। तुरंत फैट रिड्यूस हुआ, खाए पिए, एलोवेरा का कमान जो आता है तब और सारी कंपनियां बनाती है पीने के लिए, जो जूस बनाती है एलोवेरा की कंपनी, वो पीने के बाद कई सारे लोग को प्रॉब्लम होती है। वेट लॉस तो बहुत तेज़ी से होता है, फिर जब प्रॉब्लम होती है किडनी में, हार्ट में, हार्ट अटैक में, ब्लड में, बीपी शुगर में, ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो योगा करने के साथ अगर आप पतले नहीं भी हो रहे तो फ्लेक्सिबल हो रहे हो और स्वस्थ रह रहे हो, तुम्हारे पास बीपी शुगर हाइपरटेंशन इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये खास बात है। पतले नहीं होगे तो चलेगा भाई, खाना पीना डाइट रखेगा आदमी तो होगा। दोनों पैर क्लोज, थोड़ा अपने आप को ऐसे करके उठाया, स्पाइन उठा रखे, 1, दोनों पैर क्लोज, चिपके रहे, घुटने भी चिपके रहे, घुटने भी चिपकाओ। यस, अब देखो फील कि ये स्पाइन पे उस पार्ट पे काम कर, जिसको बड़े से बड़ा कमर दर्द होता है वो इसी से सही होगा। बस ये विश्वास आपको 1 महीने में होगा, 6 महीने में होगा, साल में होगा, क्योंकि ये बिल्कुल उसी लोअर पॉइंट पे आएगा जहाँ से तुम्हारा हिप का जुड़ाव होता है और जहाँ से तुम्हारा शरीर का ऊपरी हिस्से का जुड़ाव होता है। और बहुत स्लोली, जितना स्लो करोगे, योगा में बात ही यही है कि 2 चीज़ों का जोड़ कर एक्सरसाइज होगी। योग मतलब योगा वाला है ना, वैसे ही। और आ जाते हैं समय से, आ जाते हैं समय से। क्या बताओ, एक मूवमेंट एक मकर आसन की योग है, दूसरे में क्या ये आउट रखता है, ऐसे धीरे से दोनों पैर बाहर रखते हैं, जैसे एल्बो बाहर हो गई वैसे ये पैर बाहर। 1 2 3 4। ये तुमको इसलिए बता रहा था कि जब तुम कराओ तो तुम्हारे पास 4 वेरिएशंस हो, 3 वेरिएशन हो बताने को, है ना। मतलब अगर एक वेरिएशन मतलब करा रहे तो उसी के 3-4 होने उसी के 2-3 वेरिएशन कराए, उसके दोनों के अलग अलग। तुमको ये भी फील होगा जब मैं कर रहा हूँ या तुमको करवा रहा हूँ जबरदस्ती, तो तुमको कौन से पार्ट पे क्या फील हो रहा है ना। एक ही हो गया रिएक्शन के लिए। दूसरा, थोड़ा अपने आप को 1 2, दोनों पैर क्लोज चिपके रहे दोनों,
घुटने भी चिपकेगा, ठीक। 1 2, अब इसमें क्या है, स्पाइन काम करेगी और ये शोल्डर का ये जो अपर पार्ट खुलता है ये अच्छे से ये काम करेगा, खुलेगा स्लोली। 2 4 5 मूव इसके हो गए। चिन और चेस्ट टच करने की कोशिश, फिर ऊपर उठाओ, फिर एक रिलैक्सिंग होगी। हाथ को अपने ऐसे रखा, हाँ, एक हाथ ऐसे देगा, भुजंगासन जो करते हैं उसका तिरक भुजंगासन, ऐसे एक पोजीशन बना ली, एक पोजीशन ऐसे बना, अब उठे, यहाँ से उठे 1 यस, फिर 2 उठे यस, इनके 1, हर बार इनहेल एक्सहेल, ये भी कवर पर रखेगी, चिन के पास हाथ है, इनहेल अप एंड डाउन, इनहेल अप डाउन, फिर 1 इनहेल अप डाउन, इनहेल अप डाउन। ये कमर की एक्सरसाइज कराने के बाद कहते हैं, जैसे कि कमर की एक्सरसाइज होता है एब्स की कर रहे हो तो एब्स की हम लोग लेट के करते हैं, तो वो करने के बाद उसके काउंटर पोज के रूप में हम ये करते हैं रात में रेगुलर, ताकि कभी भी ऐसे करते हो दर्द जो आता है कभी कभी या दर्द होने लगती है जब, या फिर बैक बेंडिंग करते हो जो दर्द होने लगता है ऐसे करते हो, वो ना, ताकि एक बार मूवमेंट बॉडी का अपोजिट साइड हो गया और एक बार दूसरी तरफ। अभी तक हम लोग फॉरवर्ड बेंड कर रहे थे, अब हम लोग उसके अपोजिट करेंगे। ये बैक एक्सरसाइज के लिए हो गया, बस ये हो गया एक है, और दूसरा ये रहता है साइड के 1 2 3, ये हैप्पी बेबी पोज है, वो था सिर्फ राउंड घूमना, ये हो गया बैक मसाज के लिए है, पूरी बॉडी का वेट लेकर के स्पाइन को मूवमेंट बनती है और सारी मसल्स स्ट्रेच होती है बैक साइड की। एक ये हो गया। नेक्स्ट हाथ पीछे किए, बैक क्लोज किए, साइड से गए 1, साइड से गए 2, अंदर आने में ठंड नहीं लगी है, बाहर बहुत ठंड है, उस पोजीशन से वहां आते फिर ठंड लगी। कल यहाँ कुछ था क्या? यहाँ नहीं, बाहर वही गायत्री मंत्र वाले थे, वही कर रहे थे, बाहर पूजा करते। कहा मीजा ने कुछ खा पी कर, हाँ, कहा क्लास में नहीं रहे, क्लास में नहीं, बाहर ही था, बाहर था तब तो इतनी गंदगी है। यहाँ पे कुछ लेजर कर देते। बाहर वो खत्म हो रही है, पानी लग रहा है, पानी जैसा लग रहा है बाहर। जाके देख जाके हाँ?
इससे अगर गाड़ी चला के जाती थी इसीलिए पन्नी वाला चाहिए था ना, पन्नी टाइप की जैकेट होती है, पानी निकल जाए। हाँ। तो बैग बनने हो गए। ये क्या कहते हैं इसे? ये सर्कल या तो फिर चक्रासन। अच्छा चक्रासन में ऐसे बैठते सामने की तरफ पैर। अच्छा, एक चक्रासन और धनुरासन हो गया। ये धनुरासन हो गया। धनुरासन उष्टासन भी हो गया। उष्टासन ऐसे बैठते, जैसे पीछे की ऐसे हो गया। आश्वासन इसे बोलते हैं। आश्वासन भी इसे कहते हैं। शवासन। आश्वासन। आश्वासन तो वही होता है जो हम लोग सूर्य नमस्कार में कुछ आगे। अच्छा, ये बात ना। आश्वासन नहीं बोलते उसको, संचालन बोलते हैं। आश्वासन भी बोल सकते हो। उष्टासन में से रखते हैं पीछे, पीछे रखे। 1 2 रिलैक्स में आता है। ओके, एक बार अगर इसे उष्टासन कहते हैं। हाँ, एक बार अगर तुम ऐसे किए हो तो दोबारा फिर एक बार ऐसे सामने हाथ रख के अभी आके पीछे फिर उठे, ताकि कमर का रोटेशन बैक साइड पीछे चले, एक बार फॉरवर्ड साइड चले। क्योंकि बार बार एक ही तरह का मूवमेंट करते रहोगे तो फिर वो आएगा कहीं भी। अगर जानते हो कभी भी एक्सरसाइज जब करोगे कमर से रिलेटेड, जो आरामदायक मुद्रा होगी वो उससे भी आता रहता है हल्का फुल्का, और ये तुमको जानना होगा। इसीलिए तुम्हें कहता हूँ कि धीरे धीरे करोगे तो 2 फायदे हैं। पता तो चलेगा कि कहाँ बैड पेन हो रहा है, गुड पेन हो रहा है। एक होता है कि हाँ यार बहुत अलग सा दर्द है, ये इस पर नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल अवॉइड करें। कर रहे थे ना, हाँ हो रहा था। हाँ, उसको अवॉइड कर देना, उसको कुछ नहीं करना, उधर रिलैक्स चाहिए होता है, तब कुछ नहीं करो। कभी कभी मेरा तुम्हारे साथ नहीं, सबके साथ होता है, मेरा ही दर्द होता है, तो फिर हम उसका अपोजिट विंग्स करते हैं, अपोजिट करते हैं। ऐसे हम एक प्रकार से साथ ऐसे बैठ के दोनों बॉडी को, पूरे शरीर को अपने पैरों के बीच में है शांत करते हैं। रिलैक्सिंग रहेगा, हिप मसल्स रिलैक्स होंगी, अपर रिलैक्स होगा, हेड टच किया, होल्ड किया कुछ सेकंड। हाँ फ्लेक्सिबल होगी मत, बहुत फ्लेक्सिबल होगी। हो रही है धीरे धीरे हो रही है। एक पैर को आगे लाए, एक पैर पीछे किए, एक पैर अपने पास में लाए। जितना ये ऊपर आ सकता है। ये है एक रिलैक्सिंग, ऐसे पैर ऊपर करके, फिर ये कुछ ऐसे रुकते हैं इधर। ये रिलैक्सिंग के लिए, कमर दर्द हो या तो फिर ना मजा आ रही हो, हिप में दर्द हो रहा हो, हिप ओपनिंग में से अपना हो, तो आप ऐसे रख सकते हैं रिलैक्स करके। और अगर आगे की ओर तकिया रखी रहे तो और अच्छा है, इसके आगे इसके ऊपर, ये ऊपर रहता है तो और मिल जाना है पीछे। मतलब ये बराबर पे रहता है। हाँ, ऐसे ये ऊपर, थोड़ा सा ये ऊपर ऐसे अनबैलेंस रहता है, इसे बराबर। बराबर। ये बस रिलैक्स कीजिए, मजा आती है। हिप में कभी दर्द होता है, कूल्हों में दर्द होता है, जिनको कमर की हड्डी के नीचे दर्द होता है उनको बड़ा मजा आता है। हाँ, और ये मूवमेंट हो गई, ये स्पाइन ट्विस्ट हो जाएगा, ये भी कर सकते हो बिल्कुल। एक दिन किया था ना इसको, बैक साइड से पीछे की तरफ टच, पीछे की तरफ हाथ टच कर, हम लोग तो मूवमेंट, मतलब स्पाइन है। हाँ वही बस देखो मूवमेंट करना है स्पाइन स्लोली। कोई एक जन देख तो रहा है हमें। चलो, कोई एक जन जो देखता है वो कम से कम वो सोचता है कि चलो कुछ तो मिल रहा है, देखते हुए सीखते हुए कुछ है क्या। रोज अगर एक ही चीज करते रहो सीख जाएगा। ओके, इसमें एक काम और करते हैं, ऐसे रुके रहते हैं, रिलैक्स चलते रहते हैं, सिंगल सिंगल लेग धीरे धीरे चलाते रहो। तो जो है कमर से नीचे का हिस्सा जो होता है, कमर से नीचे का नहीं कह सकते, थोड़ा और ऊपर से, वहाँ पे मसल्स होती है L1, L2, L3, L4, L5 हो रहता है।
जो स्लिप डिस्क का मैटर आता है जब कभी किसी को, तो वो वहीं आता है। स्लिप डिस्क का मतलब कि हड्डियों का जो इसे टुकड़ों में जुड़ा होता है ना, 1 2 3, तो ऐसे बैठ जाती है। हाँ वो बैठ जाती है। तो उसके लिए ये ऐसे धीरे धीरे चिक चल चिक कहते हैं। चिक लग जाना, तो उसके लिए आप धीरे धीरे पैरों को मूवमेंट करते रहते हैं, धीरे धीरे पैरों को घुमाते रहे। उससे गैस भी बनती है ना, जिससे गैस बनती है उसी की चिक बैठ जाती है कभी कभी। अच्छा हाँ ऐसा होता है, तो धीरे धीरे बनाते रहे। वज्रासन में बैठ के ऐसे कपालभाति भी करते हैं। अच्छा जैसे यहाँ पे मांस थोड़ा खुला है, इसे दबाना चाहिए। आज फूला हुआ तुम्हारा दिख रहा है क्या? नहीं खुला मतलब ये चीज़ ज़्यादा थोड़ा वो लगता है। देखिए ठीक है, उसको तो यहाँ से अच्छा लाइनिंग आ जाती है। वो अच्छा होता है देखने में। ये इतनी सी पोजीशन में बैठे कमरे में। ये मैंने एल्बो इसलिए सीधी की है ताकि एल्बो जब सीधी रहती है तो स्पाइन भी सीधी रहती है। तो अपना हाथ इस पर रख लिया, थोड़ा स्ट्रेट रखा अपने आप को। थोड़े सुखासन में बैठे ऐसे, या तो फिर साइड से ऐसे हाथ रखकर, इधर साइड में हाथ रखा, 2 इधर रखा, 1 2 यस। सेम थिंग ऐसे करके सामने की तरफ चलते हैं, 1। अब धीरे धीरे अपने आप को आधी बाल्टी वाली पोजीशन बैठे हैं सुखासन में। फिर आगे की तरफ गए, हेड टच, 1। फिर आगे गया, 2। बहुत मिट्टी है ना इसमें, मेरा भी हाथ पे गिरा रहा है। साला ये सब जूते रखने की वजह से है, जूते लड़के बच्चे रखते हैं इसको, थोड़ा रगड़ डालो। हेड टच किए, गुड। सेम थिंग भी करते हैं। अब अपने पैरों को एक तरफ थाई पकड़ा, अब ये शोल्डर इस पे रखेंगे, इधर रखा और ऊपर की तरफ से टच किया। आपका हाथ आपके सिर के ऊपर से, हाँ आपका हाथ आपके सिर के ऊपर से जाएगा, ऐसे रखे और टच किया, वापस आया। फिर आपने आपको एक तरफ ऐसे पकड़ा, थाई रखा, यस, शोल्डर एक रखा, धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं 4 से 5 बार। ये बैक मसल साइड में स्ट्रेचिंग करेगा। फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं आगे की तरफ से, जो हम लोग खड़े होकर करते हैं, सामने की तरफ लेगा, 1 2। वार्म अप के तौर पे ऐसे करते हैं, फिर मैक्सिमम करने के लिए अपने हिसाब से अपने सिर को घुटने की तरफ लेके चलते हैं हमारे पास। और अचानक से करने की ज़रूरत नहीं है ना, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी है ही नहीं। तुम्हें करना हो या सामने वाले को कराना हो तो बस 10 बार वार्म अप करो, भले वो एक बार एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालें, तब भी चलेगा। इतना ही कराना जितना कंफर्टेबल हो, ऐसा ना हो हाँ कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ऐसा तुम कराया जा रहे हो ये करो। हाँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और हाँ, ज़बरदस्ती comfortable करके लगेगा वो, हाँ ज़बरदस्ती परेशान हो करके कुछ जाएगा। मिलेगा भी नहीं। मिलेगा भी नहीं अपना से। प्रॉब्लम आ गई तो बैठा रह जाएगा। एक नस चल जाती है ना किसी किसी की, जब कभी मोटे आदमियों की या किसी की, वो उतरने में लोगों को महीनों लग जाते हैं। हाँ लग जाता है हमें। एक लेडीज आती थी यहाँ पे, वो आ नहीं रही तब से, गई फिजियोथेरेपिस्ट के पास, मोटी मोटी थी, अभी आई नहीं लौट के।
आई क्या आप नहीं एक है क्लास अब। हाँ यहीं आती थी, करते थे, 2 लोग आते थे और वो दोनों भी नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे तो क्या कर सकते हैं? कोई ज़बरदस्ती नहीं, फ़ोन नहीं करेंगे हम। आपको अपने मन से घर पे कर ले वो बेहतर है, बाहर कर ले वो बेहतर है, जहाँ जिससे बेहतर बन पड़े। इस पैर को फिर आगे रखते हैं फिर इधर, या तो फिर इस पैर को इस तरह से टच किए या फिर इस तरह से टच किए। 1 2 3 4 रखा। 1 2 3 4 या फिर ऐसे रख के पोजीशन बनाई, चेस्ट अप किया, इसको नीचे ले गए 1, फिर इधर 2, थोड़ा सा अपने आप को बर्ड्स को उठाया। ओके, स्वस्थ रहने के लिए 2 3 4 5 तो नहीं कहेंगे, कम से कम 20 तरह के मोमेंट प्रीमियम मूवमेंट हैं जो अच्छे मूवमेंट है, कमर से रिलेटेड चाहे थाई से रिलेटेड, जैसे एक साइड टू साइड लंजेस करते हैं या स्क्वाट्स करते हैं। ये भी रोज अगर हर चीज़ 20-30 एक्सरसाइज है जिसको एक ही बार करते हुए करोगे तब भी आधे घंटे आदमी कर लेगा। हो और जो आधे घंटे रोज करेगा ना एक्सरसाइज, रोज आधे घंटे, उसको स्वस्थ रहने से कोई नहीं रोक सकता है। उसको कुछ और करने की जरूरत है ही नहीं। ये ट्रस्ट होना भी चाहिए मन में, वरना कुछ नहीं। और जैसे कि मैंने बताया कि ब्रीदिंग का ज़्यादा काम होता है, तो ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दें। ब्रीदिंग पे होता है, ब्रीदिंग पे ही सब कुछ डिपेंड है। जब तक सांस है तब तक इंसान है। तो इसलिए ब्रीदिंग की ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। बाकी एक्सरसाइज भी ज़रूरत है, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज। हाथा योगा में आसन की ही प्रैक्टिस की जाती है ना। तो आप आसन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जब आसन के साथ आप, एक होता है ना बॉडी माइंड सोल, बॉडी के साथ प्रैक्टिस हो गई, माइंड के साथ ब्रीदिंग का काम होता है। जब माइंड के साथ प्रैक्टिस होती है तब उसमें आत्मा कहते हैं ऐसा कि तब आप, जब मन एकदम शुद्ध रहेगा, मन एकदम एकाग्र रहेगा, तो फिर तीनों का जोड़ हो जाता है, माइंड बॉडी सोल। तो आपकी एक आत्मा अच्छी आत्मा कहलाती है। कहने का मतलब होता है, इसका अंदर का अर्थ मैं भी कुछ नहीं जानता, इसलिए ऐसा हमने कहते हैं। सुना था जैसे योगा वोगा करते हैं, वो बता रहा था कि गुस्सा आता है आपको कि नहीं आता है। सबको गुस्सा आता है, ऐसा नहीं कि जो योगा करे उसे गुस्सा नहीं आता है, पर छोड़ देना, अगर क्या छोड़े या भाड़ में जाए, छोड़ देना ही तो कंट्रोल है ना अपने ऊपर। कंट्रोल, इंद्रियों का कंट्रोल। ये टकले टकले हैं, वो सिखाते हैं योगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार, वो बताते हैं कि नॉर्मल लाइफ कैसी होती है, मतलब हमारी रूम की लाइफ कैसी होती है। भाई सभी इंसान है, सबको गुस्सा आता है, अपनी फैमिली पे गुस्सा आता है, किसी तरह के प्रोग्राम पे, घर के किसी तरह के काम में गुस्सा आने लगता है, आता है, सबको आता है। ठीक है, स्ट्रेचिंग नहीं होता है। अच्छा, इस तरह पैर लगा के करेंगे, कैसे? पैर लगा के दोनों को। पैर नहीं, इतना तेजी से मत करने की कोशिश करो, थोड़ा सा इसको मूवमेंट करो। अच्छा, हल्की एक बार करते हैं कि देख चलो इधर से भी। ठीक है, ठीक है। अपने अपने पैरों को पहले अपने पैरों को, तुम्हारा एक टारगेट है और थोड़ा आगे। तुम्हारा ये टारगेट है, पहले तुमको ये टच करना है, ऐसे हाथ करके टच करो, हाथ से आओ, यहाँ पे हाथ टच करो, इधर यहाँ पे मेरे हाथ के पास, हाँ यहाँ तक आ जाओ ना। चलो अब आओ, कमर टच करो, कमर के पास। 1 2 3 4। तो मैंने यहाँ पैर रख लिया ना, तो अब पैर उठ नहीं रहा है, घुटने नहीं उठ रहे हैं। नहीं उठना है तो 2 ऑप्शन है कि पीछे का मसल हिप बहुत अच्छे से मूव होगा, दर्द होगा, या फिर ये इनर की ये मसल होते हैं, ये इधर वही पे। तो जब ये खुल जाती है, क्या होता है समझने की, ये अपर पर्सन मसल था, ये इनर ये पार्ट जब खुल जाता है ना, तो ये फिर तुमको लगेगा कि ये तीनों पार्ट अलग अलग हो गए। ये यही तो टाइट, वही दर्द होता है, वो धीरे धीरे हैमस्ट्रिंग का वो पार्ट इतनी आसानी से खुलता नहीं, खुल जाएगा फिर कभी दर्द नहीं होगा। दर्द होगा तो वो इजीली हल्का हो जाएगा, फिर वो खुलने लगेगा। यही तो मेन टाइट है, बहुत टाइट है। जब चाहोगे तब ऐसे खुलने लगेगा। पोजीशन रखिए, कोशिश की यहाँ पे आए बस। अभी वार्म अप कर रहे हैं 1 2। वार्म अप हम हर बार करते हैं, चाहे कुछ भी हमको आता है ना आता है, 10 बार हम करते हैं, उसके बाद हम अपनी तरफ से एफर्ट डालते हैं कि नीचे आता है। 5-10 बार करने के बाद यस, ये जरूरी है। तो अब ये वही दर्द होता है यहाँ पे, क्योंकि खुलना इसी को होता है। जरा से ये खुल जाएगा तो साइड स्प्लिट, मिडिल स्प्लिट भी होने लगेगी। यही खींच रहे हैं।
तो ये वार्म अप जरूरी है, इसके लिए एक्सरसाइज जरूरी है। फिर 10 बार ये किया और 10 बार हमने फॉरवर्ड की तरफ देख लिया अपने आप को, फिर 10 बार इधर साइड साइड किया, 1 2 3, इसी तरह 10 बार किया कंट्रोल करके, थोड़ा थोड़ा 10 बार किया इधर, ताकि पहले ये पता चल जाए कि मूवमेंट कहाँ हो रहा है, दर्द कहाँ हो रहा है, फिर अपनी तरफ से ताकत लगाना। अचानक से कर दोगे तो पक्का ही नहीं। ये मिडिल स्ट्रीट का मामला है, हिप को खोलना, और लगता है लोग हिप के मामला है, हिप को लेके हिप नहीं खुलती है, खुलता ही है। भाई तुम हिप का कोई एक्सरसाइज हुआ नहीं हुआ, काम तो सब नहीं काम तो मतलब हिप तो एकदम खुल जाएगा, वो तो खुला ही है सबका एक्सरसाइज, मतलब मेन चीज ये मेन यही पा रहे हैं हैमस्ट्रिंग का काम। ये तो अपने थाई के साथ भाई की नसें बहुत ज्यादा मजबूत वो है। कितनी फ्लेक्सिबल है। अच्छा, नसों का भी फ्लेक्सिबल होना होता है, अभी करते हुए नसों का फ्लेक्सिबल होना होता है। यही चीज इधर भी करते हैं हम लोग, साइड से साइड लंजेस करते थे, याद है तुम्हें? तो 1 लंजेस करते हैं, 2 ध्यान से, 1 2 3